حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسا کریں کہ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں سارے کا سارا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا۔ جس راستے پر بچہ بوڑھے کے پاس جاتا اس راستے میں ایک نیک نفس انسان رہتا تھا۔ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اس نیک راہب کی باتیں بچے کے دل میں اتر گئیں، لہذا جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے راہب کے پاس لازماً جا کر بیٹھتا۔ لیٹ ہونے کی صورت میں بوڑھا جادوگر بچے کو مارتا۔ اس بات کی بچے نے راہب کو شکایت کر دی۔ نیک آدمی نے بچے کو کہا، جب تو لیٹ ہو جائے تو جادوگر کو کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹیں تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے آنے نہ دیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچہ راستے پر جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ بہت بڑا سانپ لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یوں سانپ نے راستہ روک کر لوگوں کی آمد و رفت ناممکن بنا دی ہے۔ بچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آج مجھے علم ہوگا کہ جادوگر افضل ہے یا پھر راہب۔ بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا علم درست ہے تو جادوگر کی نہیں راہب کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور اس سانپ کو ختم کر دے تاکہ لوگ اپنی اپنی راہ پر چلیں۔ بچے نے پتھر سانپ کو مارا، اللہ کے حکم سے سانپ ختم ہو گیا۔ سبھی لوگ تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ بچہ آ کر اپنے استاد راہب کو اس عجیب و غریب واقعے کی خبر سناتا ہے۔ راہب حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے۔ آج تمہارا علم مجھے حیران کر چکا ہے، لیکن بیٹے یاد رکھنا، اس وجہ سے تیری آزمائش ضرور ہوگی، لیکن اس وقت میرے متعلق کسی کو مت بتانا۔ بچہ ابتدائی ایام میں ہی بہت بڑا پیر بن گیا، جو دعا کرتا اللہ پاک قبول فرماتے، حتیٰ کہ اندھے کو دم کرتا تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ وہ بچہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ وہ بچہ ہر مرض کا علاج کرنے میں آخری حد تک کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، وہ اچانک اندھا ہو گیا۔ پتا چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ دعا اور دم کرتا ہے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ چنانچہ اس اندھے وزیر کو پکڑ کر بچے کے پاس لایا گیا۔ بچے نے دعا مانگی، دم کیا تو اللہ پاک نے وزیر کی بینائی واپس لوٹا دی۔ دعا اور دم کرتے ہوئے بچے نے کہا تھا، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے گا۔ بادشاہ کا وزیر جو چند لمحے قبل نابینا تھا، اب اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس مسرت کے عالم میں وزیر نے گھر جا کر اس بچے کے لیے ہر قسم کے تحائف کا بندوبست کیا، اور بچے کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ سبھی تحائف آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے شفا دی ہے۔ تو ان کے درمیان یوں بات چیت ہوئی۔ بچہ کہنے لگا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وزیر اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی کو شفا سے بھر دیا۔ بڑی خوشی سے وزیر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ تعجب کرتے ہوئے، تیری نظر کو کس نے واپس لوٹا دیا؟ وزیر خوشی سے کہتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ غصے میں آ کر کہتا ہے، تو نے اور بھی خدا بنایا ہوا ہے؟ وزیر ایمان اور بہادری کے بل بوتے پر کہتا ہے، ہاں، وہ خدا جو تجھے اور مجھے دونوں کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس وزیر کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے معزول کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ بچے کے بارے میں مجھے بتا۔ چنانچہ وزیر بچے کے بارے میں بتا ہی دیتا ہے۔
बादशाह के कमांडर बच्चे को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर देते हैं। बादशाह बच्चे से मुखातब होकर कहता है, ए मेरे बेटे, तेरे जादू का तो काफी दायरा वसी हो चुका है, यहां तक कि तू अंधे को शिफा देता है। बच्चा, मैं किसी को शिफा नहीं देता और ना दे सकता हूं, बल्कि शिफा तो सिर्फ अल्लाह पाक देते हैं। बादशाह का चेहरा जर्द लाल हो गया। आखिरकार बादशाह बच्चे को तरह तरह की सजा देता है। कहता है, बता तुझे यह बातें किसने बताई? आखिर बच्चे ने राहब का पता बता दिया। बादशाह अपने सिपाहियों को भेजता है और कहता है, फलां राहब को फौरन हाजिर किया जाए। सिपाही राहब को फौरन बादशाह के दरबार में ले आते हैं। जो ही राहब बादशाह के सामने आता है, बादशाह नेक नफ्स इंसान को कहता है, तुम फौरन अपने दीन से फिर जाओ, वरना तुझे सख्त सजा से दो चार कर दिया जाएगा। राहब बादशाह के बेहुदा कौल को नाकाबिल तंकीर बना देता है। जब बादशाह राहब की ईमान से ना फिरने से लाचार हो जाता है, तो अपने इर्द गिर्द खड़े हवारियों को हुक्म देता है, इस आदमी को खत्म करने के लिए लकड़ी चीरने वाला आरा लाओ। बादशाह के कहने पर आरा हाजिर खिदमत किया जाता है। नेक दिल राहब के सर की मांग पर आरा चला दिया जाता है। इस बेदर्दी के आलम में नेक राहब की जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस संगीन जुल्म के बाद बादशाह का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। वो अपने साथियों को हुक्म देता है, वजीर को भी इस तख्ते मौत पर लाया जाए। चुनांचे बादशाह के वजीर को लाया जाता है। बादशाह कहता है, अपने नए अकीदे से बाज रहो, वरना तुम्हारा हशर भी राहब की तरह होगा। वजीर भी ईमानी जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए इनकार कर देता है, लिहाजा उसके सर पर भी आरा रख दिया जाता है। ईमानदार वजीर के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। यह कैसा खौफनाक मंजर था, जिसको देखने वालों की आंखें आंसू बहा बहा कर थक चुकी होंगी। राहब और वजीर की यादगार शहादत के बाद बादशाह तेश के शोलों को उगल रहा था। अब मासूम बच्चे को सजाएं देना शुरू कर देता है। बादशाह बच्चे को कहता है, अभी भी अपने जहन को बदल लो, वरना तुम भी पहले दोनों की तरह हो जाओगे। बच्चा अपने दीन से फिरने से साफ इनकार कर देता है। बादशाह सिपाहियों को हुक्म देता है, इसको बुलंदो बाला पहाड़ पर ले जाओ, और जब तुम पहाड़ की कोहान पर पहुंच जाओ तो इसको दीन से फिरने का दोबारा कहना। बाज आ जाए तो बेहतर, और अगर दीन का इनकार करे तो इसको बुलंद पहाड़ से फेंक दो। सिपाही बच्चे को लेकर पहाड़ों में से बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और बच्चे को सच्चे दीन का इनकार करने पर उकसाते हैं। जब वो उसको ऊपर से फेंकना चाहते हैं तो बच्चा बद्दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, तू ही इनको काफी है। जिस तरह तू उनसे करना चाहता है कर दे। पलक झपकने से कबल पहाड़ लरस जाता है। बादशाह के आदमी गिरकर तबाह हो जाते हैं। वो बच्चा बहिफाजत दोबारा बादशाह के पास आता है। बादशाह दहशत और हैरानगी के आलम में कहता है, तेरे साथ जाने वाले कहां हैं? बच्चा ईमान और बहादुरी के आलम में कहता है, मेरे अल्लाह ने उनसे निबट लिया है। बादशाह दोबारा बच्चे को बहरी फौज के हवाले कर देता है और सिपाहियों को हुक्म देता है, इस बच्चे को कश्ती में बिठा लो और समुंदर के दरमियान में ले जाकर छोड़ दो। अगर ईमान से फिर गया तो बेहतर, वरना इसको पानी के मौजों में डाल देना। वो ऐसा करते हैं। जब बच्चे को गहरे पानी में ले जाते हैं तो मजबूरन बच्चे को दीन छोड़ने पर उभारते हैं। बच्चा नहीं मानता तो उसको समुंदर की तह में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चा बद्दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, इनको जैसे तू चाहता है संभाल ले। कश्ती खतरनाक हिचकोले खाती है। एक लम्हे में सभी बहरी फौज खत्म हो जाती है। बच्चा बचकर फिर बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह गुस्से और बुजदिली में कहता है, जो फौजी तेरे साथ थे वो कहां हैं? बच्चा इत्मीनान और साबत कदमी से जवाब देता है, अल्लाह ने उनका बंदोबस्त कर दिया है। बच्चा बादशाह से कहता है, ए बादशाह, जब तक मैं तुझे मारने का तरीका ना बताऊं उस वक्त तक तू मुझे नहीं मार सकता। बादशाह मायूसी और शिकस्त में कहता है, वो तरीका क्या है?
बच्चा जवाब देता है, एक मैदान में अपनी सभी अवाम को इकट्ठा करो और मुझे खजूर पर फांसी दो, फिर एक तीर मेरी तुरकश से ले लो और तीर को कमान में रखते हुए कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो इस बच्चे का रब है। यह कहकर मुझे तीर मारो। जब तुमने यह काम कर लिया तो तुम मुझे कत्ल कर पाओगे, वरना नहीं। आखिर ऐसा ही हुआ। बादशाह ने अवाम को वसी मैदान में इकट्ठा किया, बच्चे को खजूर पर फांसी दी। बादशाह ने बच्चे की तुरकश से तीर लिया, फिर कमान में रखकर कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये अल्फाज कहे तो तीर छोड़ दिया, जो बच्चे की कनपटी पर लगा। बस मासूम बच्चे ने अपना हाथ कनपटी पर रखा और रूह अर्श मुअल्ला की तरफ परवाज कर गई। इर्द गिर्द के लोग बादशाह का यह रवैया देखकर आवाज़े बुलंद पुकारने लगे, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं। एक गिरोह बादशाह की खिदमत में हाजिर होता है। गिरोह परेशानी के आलम में बादशाह से कहने लगा, ए बादशाह, जितना तुम खौफ खाते थे उससे दुगना और तुम्हारे खौफ में इजाफा हो गया है। ये कि सभी लोग मुसलमान हो गए हैं। बादशाह गुस्से की हालत में, उन लोगों के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदो, उनमें शदीद किस्म की आग जलाओ और सब लोगों को उसमें फेंक दो। जालिम गिरोह बड़े बड़े गड्ढे खोद देता है, उसमें आग जलाते हैं, मुसलमानों को आग के करीब लाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं, अपने दीन से फिर जाओ। जो ना मानता उसको आग में फेंक देते। कई मोमन लोगों ने जाम शहादत नोश किया। एक नेक औरत को आग के शोलों का नजारा करवाया जाता है। उसके पास दूध पीने वाला बच्चा होता है। वो आग में छलांग लगाने से खौफजदा होती है और पीछे हटती है। मासूम बच्चा अपनी वालिदा से कहता है, ए मेरी मां, आग में कूद जाओ, सब्र करो, क्योंकि तुम सच्चे दीन पर हो।